Hello everyone, welcome to Target Academy. This is the first class of first year students, and in this particular lecture we are going to study about engineering mechanics. The syllabus is based out of Astu, and this is the module 1, which is the equilibrium of rigid bodies, जहाँ पे आप लोग को इंट्रोडक्शन फ्री बॉडी डायग्राम इस चीज के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स एंड देयर रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है. I'll take the example. I'll do some questions out here. जिस तरह के questions आपका एंड सेमेस्टर में देखा है मैंने, जो PSU सॉरी जो आपके PYQs में देखा है मैंने, the kind of questions that has appeared in the ASTU PYQ, I'll solve them right here, and you let me know. Do take part in this question solving thing. Use the calculators, find out the answers, and let me know if you have any doubt. All right. So for the first question, a ball of weight 120 Newton rests in a right angle groove. Right angle groove है. Right angle groove का मतलब this angle is right angle. So 60 plus 30 90. So entire angle should be 180. So 60 plus 30 90. 180 minus 90. This part is definitely 90 degrees. So they are saying it right. It is a right angle groove. The sides of the groove are inclined at angle of 60 and 30. 60 and 30 to the horizontal. All the surfaces are smooth. Then determine the reactions Ra and Rc at the point of contact. Okay. So first thing first, what is the step 1 that we'll do here? Anyone who can tell me what is the step 1 of this particular question? Who can take part in discussion, guys? All of you. All right. I don't know whether you guys are probably यहाँ पे. चलो ठीक है. यहाँ पे क्या है, आपके पास पॉइंट बी यानी कि सेंटर ऑफ द स्फीयर है, एंड एक बॉल है, स्फीयर डेफिनेटली. तो we'll draw a free body diagram. So one force that is acting, which is 120 Newton, which is the weight of the sphere itself, and this is the point C. So point C will offer a normal reaction. This will be a reaction will be offered from the surface at point C, from point C at 90 degree, obviously. So RC will go something like this, and it will pass through point B. तो RC यहाँ से जा रहा है ऐसे करके. Pay attention everyone, huh? So this is RC. So this is RC. You draw the free body diagram. Free body diagram क्या होता है? The diagram of a body which is free from all the surfaces and displaying and showing all the forces that might be acting, that are acting on the body. So on this sphere, we take out this sphere free from all the surfaces and show all the forces acting on this sphere. So one force is 120 Newton, which is the weight, and the other one is RC, which is from surface at point C. So this is RC, and then from surface at point A, this is the point A यहाँ पे. So यहाँ से ऐसे करके this is RA. So what we draw here right now is a free body diagram. अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है, यू से कि सर मुझे ये कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है, इसका प्री रिक्विजिट नॉलेज जो चाहिए मुझे वो समझा दीजिए. आई विल डेफिनेटली टीच यू द एंटायर थिंग regarding how to solve these questions or what are the basic primary things that you have to take into consideration. अभी देखो तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे. हम लोग को निकालना है आर ए एंड आर सी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सो वी कैन डू इज वी हैव टू in a plane we have two directions, x and y. So you must know how to resolve the forces. I hope you guys know how to resolve the forces. Do you know this, all of you? How to resolve the forces? Yes or no, guys? Can I hear it from you? Do you know how to resolve the forces, all of you? All of you guys? If you not interact, I'll not be able to help you guys, for sure. If you interact and let me know, I'll help you guys, for sure. This is my guarantee. Everyone, do you know how to resolve the forces? Yes or no? ठीक है, आप लोग एक बात बताओ मेरे को. So if I have to resolve it, for example, if this is the force and this is the angle theta, so what will be this one, all of you?
What will be the value of this one? This vector. This is force F. This one F cos theta. Very good. And this one will be F sin theta. ठीक है. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज थीटा. सो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, आप जिसका नॉलेज नहीं है या जिसका नॉलेज में थोड़ा वीकनेस है, सो द एंगल थीटा always is this, whenever we consider theta, it is considered between the base and the hypotenuse. So this angle theta always will be between base and hypotenuse. If this is the theta, this becomes base. अगर हम लोग ये थीटा लेते हैं, अगर हम लोग ये फाई लेते हैं, तो ये फाई के लिए ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर. सो थीटा के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर. So definitely sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse and cos theta is equal to base by hypotenuse. So if you resolve a vector towards the base, तो cos आएगा. If you resolve the vector towards the perpendicular, sin आएगा, because sin में perpendicular. So in this case, what we have, चलो एक बार angle draw कर लेते हैं. Let us draw the angles यहाँ पे. So यहाँ पे क्या क्या angles आ सकता है? Let us see. So we'll draw some straight lines from here and we'll pass it from here, something like this. ये RC आ जाएगा. And then we will have RA. So we will have RA from here. So this is RA, reaction from point A. So this is RA. Fine. Now what we'll have? So in order to keep the sphere in equilibrium, we must have conditions of equilibrium. Static equilibrium के conditions को fulfill करना चाहिए. Sum of forces in x direction must be equal to 0. Sum of forces in y direction must be equal to 0. There are two unknowns for us. So definitely we will need two equations to solve this. यहाँ से देखते हैं, यहाँ से क्या क्या आ सकता है. एक x और y डायरेक्शन में हम लोग करते हैं. हम लोग लामिस थ्योरम से भी कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. So this is 30, this is 90. So how much this angle will be? I hope you guys know this must be 30. आपको पता है ये कैसे निकाला जाता है? 30, all of you. 30, then this will be 60, all of you. आपको दिखा देता हूँ ये भी कैसे होता है, all of you. So if this is the inclined plane, अगर यहाँ पे एक बॉडी है ऐसे करके, इसका मास या वेट W है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का. तो अगर ये थीटा है तो यहाँ से ये एंगल क्या होगा? ऑलराइट, कैसे होता है ये भी देख लो. सो यहाँ से अगर हम लोग W ऐसे लेते हैं, ये थीटा है, तो ये एंगल लेते हैं, यानी कि ये साइड लेते हैं, तो ये 90 डिग्री पे. ये 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये पूरा का पूरा एंगल 90 है. सो ये जो बचेगा, दिस विल बी 90 माइनस ऑफ 90 माइनस थीटा. सो 90 90 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस थीटा, सो दिस विल कम आउट एज थीटा. सिंपल एज दैट. सो हेयर ऑल्सो व्हाट वी आर डूइंग है, यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे ऐसे आएगा 90 डिग्री. ऑलराइट, सो विल सी है, जैसे कि ये 30 है, ठीक है, ये 90 है, तो यहाँ पे यही, ये जैसे मैंने बताया आपको, ये क्या बताया, ये एंगल थीटा हो जाएगा. सो वैसे ही फॉर दिस एंगल बिकम्स थीटा, यानी कि 30 डिग्री, एंड दिस एंगल्स बिकम इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज दिस मच. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से बाई ट्रिग्नोमेट्री, आराम से. ये 30, तो ये 30, तो ये डेफिनेटली 60 ये होगा, ये 30 हो जाएगा. Alright, am I clear, all of you? All of you in this class? RA and RC will be perpendicular. Why? Because these two surfaces are mutually perpendicular 90 degree पे. So RA and RC are perpendicular to each other. ये दोनों perpendicular है. तो see 30, 60. So this line and green line are at 90 degree. ये भी 30 हो जाएगा. Am I clear, all of you guys so far? All of you? और ये 60 है, ये 30 है, तो ये 60 है. सो व्हाट वी विल हैव हियर कि आरसी को अगर हम लोग इधर रिजॉल्व करते हैं, दैट बिकम्स द बेस. सो व्हेनेवर वी रिजॉल्व अ कंपोनेंट, अ फोर्स टुवर्ड्स द बेस 60 डिग्री के इधर लेते हैं, तो दिस बिकम्स आरसी cos 60, और ये हो जाएगा आरए cos 30, आरए cos 30. तो ये पॉइंट को देखोगे तो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है. कौन सा? आरसी cos 60 एंड वी विल हैव आरए cos 30. और ऊपर क्या काम करेगा? इन द अपवर्ड वाई डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन ले लिया हम लोगों ने.
तो y डायरेक्शन में क्या काम करेगा, वी विल हैव आर ए कॉस 30 तो इधर कर दिया, तो डेफिनेटली आर ए साइन 30 ऊपर की तरफ जाएगा, आर ए साइन 30, इसको ठीक से लिख देता हूँ, सॉरी। तो वी विल हैव आर ए साइन 30 है, और आरसी का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर आया तो कॉस हुआ, उधर जाएगा परपेंडिकुलर की तरफ जाएगा तो वो साइन हो जाएगा, आरसी साइन 30 साइन 60, सॉरी 60 साइन 60, सिंपल। तो हमारे पास y डायरेक्शन में भी तीन फोर्सेस आ गए, विल हैव ये दो फोर्स है यहाँ पे आर ए एंड आरसी, और नीचे की तरफ W है, सो वी हैव आर ए साइन 30 and we have RC sin 60 and we have W. So sum of forces in x direction must be equal to 0. So it will be equal to right hand side force पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स निगेटिव हो जाएगा, तो RC cos 60 must be equal to RA cos 30. पहला, this is because of sum of forces in x direction. So RC cos 60 is cos 60 होता है हाफ, cos 30 होता है √3/2, √3/2. So 2 cancel, RC is equal to √3 RA, पहला इक्वेशन। फिर sum of forces in y direction must be equal to 0, so we will have RC sin 60 that is acting above in the upward direction, and plus RA sin 30, we will have W is equal to 120 Newton. Sin 60 is √3/2, sin 30 is half, and we have 120 Newton here. सो RC का वैल्यू √3 RA था, तो √3 RA इंटू √3/2 प्लस RA/2 इज इक्वल टू 120, √3 3 RA/2 प्लस RA/2 तो इज इक्वल टू 120. फ्रॉम हियर इट इज इक्वल टू 4 RA डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 120, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 60 कैंसिल हो गया, सो विल हैव RA इज इक्वल टू 60 न्यूटन and RC is equal to 60 √3 Newton. Am I clear to all of you? Yes or no, guys? All of you guys in this class, can I hear it from you? Is it clear to you guys so far? If there is any doubt, you can let me know without any hesitation, please. So this is one of the questions. So if you have any doubt, you can ask me. You can ask me in the groups also. You can ask me here also. I would really appreciate if you ask me the doubts right here, guys. So एक क्वेश्चन ऐसा आता है, इसी तरह का एक, we can use Lami's theorem. We can use. I am just showing the one of the ways. Lami's theorem I can आराम से I can use it. So this is RA, this is RC, this is 120, and this is RC and RA are at 90 degree. ये 90 degree पे है guys. RA and RC are at 90 degree. यही तो है all of you. This is what यही है ना. We have RC and RA both at 90 degree. म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली. अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो आरसी यानी कि दिस सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा एंड ये सरफेस का जो परपेंडिकुलर वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा. ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर, तो इसके लाइन ये जो परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये 90 तो ये भी 90, तो ऑल ऑफ दीज आर 90. तो 120 के ऑपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री. फिर यहाँ पे आता है ऐसे करके और ये ऐसे आ रहा है ऐसे. तो हम लोग को हर एक फोर्स का ऑपोजिट वाला एंगल चाहिए, वैल्यू चाहिए. 120 के ऑपोजिट तो ये 90 डिग्री, आरसी के ऑपोजिट ये एंगल चाहिए, और आर ए के ऑपोजिट हम लोग को ये एंगल चाहिए. वी नीड दिस एंगल. तो आरसी के ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा? सो दिस थिंग इज आर ए एंड आर सी 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 30, ऑब्वियसली 30 गाइस देख लो 30. आर ए ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री है, so this is 90 degree, this is 30, so entire value is 120 degree. And this one, so this is 60 and this is 30 and this is 60 again, fine obviously. तो ये this line and this line are at 90 degree और ये 60 हो गया, 90 60 150, this is 150. So Lami's theorem क्या बोलता है? This happens when three forces are concurrent, only three forces, and passing through a same point.
तब क्या होगा कि 120 के ऑपोजिट 120 डिवाइडेड बाय साइन 90 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 150 is equal to RC divided by sine of 120. Am I clear, all of you? Yes or no? All of you guys, is it clear? Any doubt, anyone? If there is any doubt, let me know. तो आर ए साइन 150 कितना, साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू आर सी बाई साइन 90 प्लस 30 बाई 120 डिवाइडेड बाई साइन 90 इज 1. सो एक एक करके देख लेते हैं. तो 90 प्लस 60 कॉस, इसको देख लो. तो आर ए डिवाइडेड बाय कॉस 60 हो जाएगा यहाँ पे, इट इक्वल टू 120. कॉस 60 इज हाफ, कॉस 60 इज हाफ. सो यहाँ से आर ए निकालोगे तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो हाफ, तो 60, तो 60 न्यूटन आया आर ए का वैल्यू. दिस इज व्हाट वी हैव हियर, 120 60 न्यूटन. एंड देन वी हैव आरसी. आरसी इज इक्वल टू cos 30. तो आरसी डिवाइडेड बाय cos of 30 is equal to 120. cos 30 RC is equal to 120. Root 3 by 2, 2 से cancel हो गया 60. I'll have 60 root 3 Newton. काम खत्म. This is what we can use. Lamis also we can use normal case where we resolve the forces. Resolving the forces is a bit complex type because कभी-कभी हो सकता है if you take the angles wrong, you might end up in a wrong solution, yeah, wrong answer of the question. So it might leave you a bit problematic. But resolving the forces you must know, guys. You must know. तो एक क्वेश्चन अगर हम लोगों ने आपको इसका करा दिया है तो दूसरा क्वेश्चन आपको एक बार मैं उसका करा देता हूँ, सपोर्ट रिएक्शंस का करा देता हूँ, आप देख लो. डू यू नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, गाइस? ऑल ऑफ यू, आप लोग का है सपोर्ट रिएक्शंस का क्वेश्चन? डू यू नो? यस और नो? हाउ? ये क्वेश्चन में मैं बाकी लोग से पूछता हूँ यहाँ पे. This question we have been asked that there is a simply supported beam which carries a length of 10 meter, which is of span of 10 meter. It carries this kind of loads 4, 4, 8 to 10, and then we have to calculate the reaction at A and B. So in this type of question, what are the types of load that you are seeing? Types of load क्या क्या दिख रहा है आपको? What are the types of loads? All of you? All of you? क्या क्या तरह का लोड दिख रहा है? Can you name the loads, guys? All of anyone? People join but they leave. Anyways, what are the types of loads, guys? Anyone? So we have point loads, right? So we have point loads, and we have, in this case, we have point loads. क्या क्या है? Point load दो है, 50 kilonewton, and we have 40 kilonewton. And we have concentrated load है, इसको UDL बोलते हैं, 10 kilonewton per meter का. यूनिफॉर्मली, आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है आप लोग का एंड सेमेस्टर में, इस पर पूछ रहा हूँ आप लोगों से. So uniformly distributed load, which is given as UDL. तो UDL है 10 kilonewton per meter का. So if any one of you guys, you can let me know if you have any idea how to solve this question. How to solve reaction कैसे निकालेंगे? Anyone? Step 1. क्या करेंगे guys? All of you. Since we have two unknowns, so we will have to generate two equations. Anyone out here, guys? कोई भी, if anyone out here wants to participate. चलो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि यू विल हैव टू सी टू अप. देखो आर ए एंड आर बी, दीज आर अपवर्ड फोर्सेस, ऊपर की तरफ काम कर रहा है. रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है कि एक बीम है, जैसे कि ब्रिजेस में क्या होता है, सो देयर इज अ हिंज सपोर्ट. सो ऊपर से कोई भी चीज का लोड आता है तो सपोर्ट जहां पे होगा वहां से उस पर रिएक्शन आएगा. तो एक्शन ये, रिएक्शन ये, न्यूटन थर्ड लॉ. सो यहाँ पे आपके पास आर ए आ गया. So the support reactions will be acting upwards. So we have Ra plus Rb. This is called sum of forces in upward direction must be equal to sum of forces in downward direction. यानी कि sum of forces in y direction is equal to 0. Step 1 में यही है पहला. तो क्या होगा कि ये जो बीम है, it has to be in equilibrium.
इक्विलिब्रियम में रहना पड़ेगा, या फिर खासकर बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट बीम, वी हैव टू मीन दैट इट शुड बी स्टैटिक. सपोर्ट स्ट्रक्चर का है. दिस इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स. सो स्ट्रक्चर्स आर स्टैटिक. So when they are static, then definitely the conditions of equilibrium apply. पहला क्या है? What is the condition of equilibrium? The condition of equilibrium is that the net sum of forces in y direction must be equal to zero. Net forces in y direction must be equal to zero. So Ra plus Rb is upward or minus 50 kilonewton काम कर रहा है, minus 40 kilonewton भी काम कर रहा है. 50 is acting downward, 40 is acting downward. और यहाँ पे एक important बात आ रहा है जिसको बोलते हैं UDL. तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 40, and then we have UDL here. This is UDL. UDL का मतलब होता है 1 मीटर में कितना अमाउंट ऑफ लोड है. तो UDL का स्प्रेड कितना है देखो. तो UDL इज स्प्रेड ओवर 4 मीटर्स. 4 मीटर पे स्प्रेड है गाइस. 4 मीटर्स पे स्प्रेड है. सो UDL इज 10 किलोमीटर. यानी कि टोटल लोड, याद रखना गाइस, टोटल लोड ड्यू टू UDL कितना होगा. दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग. इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर इनटू कितना मीटर के लिए UDL है. 4 मीटर. तो मीटर इन मीटर गॉन. 4 into 10 is 40. 40 kilonewton is acting again downwards. So minus 40 must be equal to 0. These are point loads, point load, point load, and this is the load due to UDL. So we have Ra plus Rb. सारे फोर्सेस उधर चले जाएंगे. 50 40 90 90 40 130. 130 kilonewton. Equation number 1. Am I clear to all of you guys? Yes or no? All of you guys? Abhijit and Samitra, is it clear to you? Chalo. And then step 2. Let us talk about step 2. What is the step 2 guys? All of you? आप लोगों को पढ़ाया गया है कॉलेज में? Yes or no guys? Please kindly interact so that you can help me out. And then in return I can help you out. Have you guys been taught about this kind of questions? Because I have seen in your Astu PYQ. Guys? So, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको RA एंड RB ये सब चीज निकालने के लिए बोला गया, क्योंकि देखो यहाँ पे मॉड्यूल 1 में what I see is they have given to you. So they have given to you about the type of supports and their reactions. यानी कि उसको निकालने के लिए पूछेगा आपसे. तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स यानी कि रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में पढ़ोगे और उसमें क्या क्या रिएक्शन आता है. यही चीज आप लोग को बाद में मॉड्यूल 2 में लगेगा, या मॉड्यूल 2 में लगेगा जहां पे परफेक्ट फ्रेम्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है. प्लेन स्ट्रक्चर्स. सो प्लेन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ोगे जहां पे मेथड ऑफ सेक्शंस एंड मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करोगे, और उसको यूज करने के लिए आपको रिएक्शंस निकालना आना पड़ेगा. अदरवाइज इफ यू डोंट नो दिस you will not be able to solve the question of method of joints or sections. So you kindly help me out by saying about things, that is because these lectures are free for you. I am trying to help you with the end semester examination so that you are able to solve numericals right away guys. So if you do not have any idea on this, you let me know. What is the step 2? Can anyone tell me? What is the step 2, all of you? Do you know what is moment, all of you? Moment of a force. What is moment of a force? Anyone? ठीक है. I don't think you guys actually are having a clear concept about this. Just a minute guys. So here you have to consider the moment of a force. Moment of a force क्या होता है देखो कैसे कैसे यूज करते हैं. So in this case, if there is a force acting on a body and if there is a support, कहीं पे एक point है यानी कि point A ले लिया, ये support है मान लो, and the distance is L. The moment of this force or load about A
तो मोमेंट ऑफ ए बोलते हैं, मोमेंट अबाउट ए is just like torque, but in case of moment it does not create the rotating, it does not create or it does not rotate the body, it just has a tendency to rotate the body, it does not actually rotate. Torque produces power, moment does not produce power. Moment is just the tendency of a load given to you, load like the load to rotate a body about a given point. तो moment about a is equal to p into l. तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेसी, यानी कि हम लोग को स्टैटिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग को पढ़ना होता है, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि नेट सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और दूसरा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है दैट नेट सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज सिंस वी हैव टू अननोन्स आर ए एंड आर बी, वी विल हैव टू कंसिडर टू इक्वेशंस. तो हमारे पास क्या बन रहा है गाइस, देखो. So in this case, so we have loads like this, यहाँ पे 50, then we have point load of 40, यहाँ पे RA है guys, और यहाँ पे RB है. एक और चीज आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं, मोमेंट ऑफ दिस लोड P अबाउट A. तो देखो, तो पॉइंट A, इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो आप, एक पेंसिल ले लो, यू टेक अ पेंसिल, ऑन वन एंड यू अप्लाई फोर्स, और यहाँ पे आप होल्ड करके रखो पेंसिल को. बिकॉज ऑफ दिस लोड द pencil will try to rotate clockwise, if you hold it firmly it has a tendency to rotate clockwise but not rotating, so the moment is clockwise moment. ठीक है, और इसके बीच में एक यूडीएल है. तो यूडीएल का जो वैल्यू है वो है 10 किलोन्यूटन पर मीटर का, और वो है 4 मीटर के स्पैन पे. तो यहाँ पे 2 था शायद, आई गेस दिस इज 2 4 4. ओके, द स्पैन इज 2 मीटर, 4 मीटर एंड 4 मीटर. अब ये यूडीएल, इसको इक्विवेलेंट लिखना है अगर, तो इफ आई हैव टू राइट डाउन द इक्विवेलेंट बीम और हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट बीम, देन आई विल डू इज आर ए एंड आर बी, देन वी हैव 50 40. आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी जो है, ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ बुक, एक टेक्स्ट बुक लेते हो अगर आप, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बुक लोगे, तो यू कैन जस्ट सपोर्ट द एंटायर बुक ऑन योर फिंगर while placing the finger below the book at its center of gravity. In the line of center of gravity पे रख दोगे तो बुक बैलेंस हो जाएगा. So anything which has a symmetrical distribution of mass, उसको यूडीएल बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. सब जगह लोड इक्वली मिलेगा आपको. तो ऐसे लोड का जो सेंटर ऑफ, ऐसे लोड जो उसका नेट लोड, यानी कि टोटल लोड कितना है, 10 into 4 40 किलोन्यूटन, विल एक्ट एट द सीजी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोड. तो हम लोगों ने क्या किया, यूडीएल को कन्वर्ट कर दिया किस में, पॉइंट लोड में. देखो, सो यूडीएल इज कन्वर्टेड इन पॉइंट लोड. तो 2 points loads are there only, and the UDL that was given to you has been converted to point load, that is the total load, and it acts where, it acts as the CG, center of gravity of the load. So CG पे काम करेगा, यानी कि 4 मीटर के आधा आधा पे काम करेगा. So यहां से यहां तक, फिर यहां से 2 मीटर, 4 मीटर था तो आधा आधा पे काम किया, तो यहाँ पे भी 2 मीटर, और ये भी, ये 4 मीटर. तो 4 + 2 6, 6 2 8, 8 2 10. अब हम लोग क्या करेंगे, विल टेक द सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट ए इज इक्वल टू 0. आप ध्यान से देखो, हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, अबाउट ए ले रहे हैं, तो विल के पावर, यानी कि विल होल्ड दिस बीम एट ए एंड सी द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर लोड्स एंड इट्स मोमेंट. अभी आरबी का मोमेंट कैसे होगा, ऊपर की तरफ काम कर रहा है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ पेंसिल हेल्ड इन हैंड, यहाँ पे पकड़ के रखे हो आप, और एक फोर्स आरबी, सो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, आरबी इंटू डिस्टेंस चाहिए, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग मोमेंट अबाउट ए. सो द पॉइंट अबाउट विच वी आर कंसिडरिंग द मोमेंट्स, from that point I'll have to consider the distance of the load of whose moment we are calculating. আমি যোনটো ফোর্স চাই আছো তাৰ হে ফোর্স পয়েন্টৰ পৰা, যোনটো পয়েন্টৰ পৰা আমি মোমেন্ট ওলাই আছো, তো
যোনটো moment pointer about আমি moment ওলাই আছো হেতু pointer পৰা load to distance কিমান আছে so RB তো we have taken RB and the distance is 10 meter it is anti-clockwise को एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं तो क्लॉकवाइज जो होगा नेगेटिव होगा अब यहाँ पे 50 किलोन्यूटन this is 50 kilonewton from A it is at a distance of 2 it is clockwise minus 50 into 2 अब ये 40 तो ये भी क्लॉकवाइज होगा सो माइनस 40 अब 40 किलोन्यूटन फ्रॉम पॉइंट ए कितना डिस्टेंस पे 2 प्लस 2 4 अब ये भी 40 है इसका भी क्लॉकवाइज है गाइस तो 2 2 2 6 मीटर 2 plus 4 6 मीटर ये देखो क्लॉकवाइज so minus 40 into 6 must be equal to 0 so from here I can find out the value of RB into 10 is equal to 50 ये सब कुछ माइनस साइन उधर चला जाएगा तो 50 into 2 100 40 into 4 160 60 into 4 240 240 into 160 400 400 into 100 400 plus 100 500 kilonewton so from here we can find out the value of RB is equal to 500 divided by 10 I'll get 50 kilonewton so I got the value of RB now from equation 1 we had RA plus RB we had the value as 130 kilonewton हमारे पास 130 kilonewton था so RA will be equal to 130 minus RB is equal to 130 minus 50 is equal to 80 kilonewton. This is your correct answer. This is your total answer for this kind of question. Am I clear all of you? Any doubt anyone? Is it clear to all of you? Rest of you guys in this class? Abhijit and all, if I'm audible, you can respond at least. Is it clear to you guys, all of you? इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके आस्तु के पीवाईक्यू में आ चुका है दिस हैज अपीयर्ड इन योर पीवाईक्यू इट सेज a simply supported beam of length 5 meter carries a uniformly increasing load of 800 newton per meter at one end to 1600 newton per meter मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आस्तु का ये पीवाईक्यू दिखा भी दूंगा कहाँ पे एट द अदर एंड कैलकुलेट द रिएक्शन एट बोथ एंड्स ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन इसमें डायग्राम है ही नहीं सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपको टाइप ऑफ बीम के बारे में पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसा बीम होता है जिसके दो एंड्स पे ही सपोर्ट होंगे सो वी विल हैव दो एंड्स पे सपोर्ट है ऐसे करके तो ये रोलर सपोर्ट भी हो सकता है ये हिंज सपोर्ट भी हो सकता है सिंपल ऐसे तो दिस इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड A simply supported beam of length 5 meter यानी कि span of the beam is given to you as 5 meter carries a uniformly increasing load of 800 newton meter at one end तो यहाँ पे 800 न्यूटन मीटर है ध्यान सुनना गाइस 800 न्यूटन पर मीटर का यहाँ पे एक लोड है यहाँ से इंक्रीज होते चला जाता है 1600 न्यूटन पर मीटर ऐसे चला जाएगा गाइस तो डबल हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 1600 न्यूटन पर मीटर मिला ये आंसू का पीवाईक्यू में आया हुआ है तो ये आपका लोड जो है इस तरह से दे रहा है ऐसे करके लोड बढ़ रहा है इस तरह के लोड को बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड सो इट इज वेरिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ये एक अलग टाइप का लोड है जिसका क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत होता है ठीक है एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार इज इट क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू ये इसका डायग्राम ये रहा ये क्वेश्चन का डायग्राम ये है द लोड इंक्रीजेस फ्रॉम 800 न्यूटन पर मीटर टू 1600 न्यूटन पर मीटर टू द अदर एंड डिस्टेंस इज 5 मीटर आपको रिएक्शन एट बोथ एंड निकालना है यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी क्या करते हैं ऐसे केस में देख लो जब ऐसा होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू कैसे होता है देखो मैं आपको समझा देता हूँ इजीली सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ इसको सो इसमें देखो 800 से 1600 किया अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ले लूँ इफ आई ड्रॉ वन लाइन है फ्रॉम 800 टू दिस साइड ऐसे करके
तो ये दो पार्ट में लोड हो गया। देखो, एक तो 800 न्यूटन पर मीटर का लोड हो गया, जो कि ऐसे है ना गैस, 800 न्यूटन पर मीटर का लोड हो गया गैस। So this is 800 Newton per meter. This is reaction at A. This is reaction at B. The distance is 5 meter. Plus, अब यहां से 800 को तो निकाल लिया, ये पार्ट को निकाल लिया मैंने। अब देखो तो, पे अटेंशन एवरीवन। हाँ, अब हम लोग 800 को अगर निकाल लेते हैं, इफ आई रिमूव 800, इफ आई रिमूव 800 पार्ट फ्रॉम हेयर, तो 1600 में से 800 निकल गया, और इधर से 800 में से 800 भी निकल गया गैस। सो यहाँ बच जाएगा 0, और 1600 में से 800 चला जाएगा, तो यहाँ पे भी 800 हो जाएगा। सो द अदर पार्ट ऑफ द लोड लुक्स समथिंग लाइक दिस। ऑन वन एंड it is 0, and on the other end it is 800. So 0 to 800. Am I clear, all of you? This is RA, this is RB, this is 5 meter का span. I have just broken down this two type of load, यानी कि this load, entire load into two types. One is UDL, उसमें से 800 निकाल लिया बाहर मैंने, और एक आ गया UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ऐसा केस में क्या होता है, 800 न्यूटन पर मीटर कितना डिस्टेंस के लिए, तो टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम कितना होगा, तो टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम, तो पहला क्या है, 800 इंटू 5, 800 न्यूटन पर मीटर इंटू कितना डिस्टेंस के लिए, 5 मीटर के लिए। सो वी हैव 4000 न्यूटन विच इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन। फाइन, तो ये फर्स्ट है, ये बिकॉज ऑफ यूडीएल है, यूडीएल की वजह से 4 किलो न्यूटन। अब 4 किलो न्यूटन का जो 800 न्यूटन पर मीटर फॉर 5 मीटर में चल रहा है, उसका यूडीएल का नेट लोड कितना होगा, मैं आपको दूसरा डायग्राम में दिखाता हूँ उसको। सो ये चीज को ऐसे रहने दो। तो अगर हम लोग ऐसे देखो, तो अगर हम लोग टोटल लोड बाद में इक्विवेलेंट बीम बनाते हैं, तो टोटल लोड लिखेंगे गाइस। सो दिस इज आर ए, दिस इज आर ए, दिस इज आर बी, आर ए एंड आर बी आर, यानी कि 5 मीटर अपार्ट। तो 800 इंटू 5, 4 किलो न्यूटन, तो 4 किलो न्यूटन ऐसे काम करेगा, बीच में, बीचों बीच काम करेगा, बिकॉज इट इज यूडीएल, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है 4 किलो न्यूटन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करेगा, तो दिस विल बी 2.5 मीटर बेस। नाउ टॉक अबाउट यूवीएल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो दिया है 0 से 800 एंड 5 मीटर, तो जब भी यूवीएल का लोड निकालते हैं, तो टोटल लोड ड्यू टू यूवीएल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो बेस 800, हाइट 5 मीटर, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कुछ भी ले लो, कितना हो जाएगा, ये 400 इंटू 5, 2000, तो 2 किलो न्यूटन, 2000 न्यूटन, तो इट इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। अब ये कहाँ काम करता है, तो ध्यान से सुनना गाइस, हाँ, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। अगर ये ऐसे काम कर रहा है, अगर ये हाइट है, ये बेस है, तो सेंट्रॉइड पे काम करेगा। दिस टोटल लोड ड्यू टू यूवीएल दैट इज 2 किलो न्यूटन विल एक्ट एट द सेंट्रॉइड ऑफ द फिगर। तो कोई भी ट्रायंगल जो होता है ना, उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है मालूम है, उसका सेंट्रॉइड लाई करता है 2/3 2/3 एच पे फ्रॉम द वर्टेक्स, एंड 1/3 एच फ्रॉम द बेस। ये काम आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा ही आएगा, ये काम आना ही है, तभी जाके आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस तभी लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे गाइस। सो दिस इज अ ट्रायंगल, so in this triangle this load, the total load that is 2 kilonewton will act at the CG of this, so 2/3 h पे काम करेगा, यहाँ है CG इसका। तो ये 2 किलोन्यूटन का इक्विवेलेंट लोड जो है, यूवीएल का इक्विवेलेंट लोड है ये 2 किलोन्यूटन, वो काम करेगा यहाँ पे फ्रॉम द वर्टेक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 h। सो
2 किलोन्यूटन यहाँ पे काम कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3, h कितना है 5, so this is equal to 10/3 मीटर पे काम कर रहा है. These 2 points we have got. अब हमारे पास अब रिएक्शन निकालने का आ गया सारा कुछ. We have converted the given load in terms of 2-point loads, and now we can easily solve RA plus RB. Sum of forces in y direction must be equal to 0. RA RB ऊपर, 4 और 2 नीचे, तो total load in vertical direction is 6 kilonewton. And the second equation we want is moment about A. A के about moment ले लेते हैं, must be equal to 0. तो moment about A, तो A के about ले रहे हो, तो RB is एंटी क्लॉकवाइज. RB इंटू कितना, RB इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2.5. देख लो, ये 4 किलोन्यूटन डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज होगा. तो 4 कितना डिस्टेंस पे काम कर रहा है फ्रॉम ए, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द मोमेंट अबाउट ए फॉर ईच ऑफ द लोड्स. तो आरबी का ले ली, 4 किलोन्यूटन इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम ए, सो 4 इंटू 2.5 माइनस this 2 kilonewton is clockwise acting at a distance at 10/3 from A. So 2 into 10/3 is equal to 0. So RB into 5 is equal to 4 into 2.5 10 plus 20/3. ये 50/3 हो जाएगा guys. देख लो 30 plus 20 50/3. तो RA into 5 is equal to 50/3. So cancel हो गया 10/3 is equal to 3.33 किलोन्यूटन, या फिर 3333 न्यूटन लिख सकते हो आप, आपका मर्जी है. तो 3.33 निकल गया. RA प्लस RB 6 किलोन्यूटन था, RA का वैल्यू 10/3 निकला या 3.33 निकला, तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 6 किलोन्यूटन. RB इज इक्वल टू 6 माइनस RA, 6 माइनस 3.33. आई एम गेटिंग दिस वैल्यू एज 2 पॉइंट, कितना आ रहा होगा all of you? RA प्लस RB यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4 किलोन्यूटन 3.33. ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ध्यान सुनना, 0 to 400. ठीक है, और यहाँ पे 500. ठीक है, कितना आ रहा है गाइस ऑल ऑफ यू? तो आप निकाल सकते हो, इसका जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर आ जाएगा गाइस. So this is how we solve numericals on type of questions like this, where we have varying load from one end to the other end. Is it clear to all of you? Yes or no? So इस तरह का क्वेश्चंस आपको एंड सेमेस्टर्स में आएगा गाइज, पूछेगा. अभी तक पूछा नहीं होगा, you do not rely on the previous year's questions guys. हाँ, recently what happened, one of my batches, they practiced the questions according to previous years of different colleges करके देखा, वर्कशॉप थ्योरी एंड प्रैक्टिस 6 सेमेस्टर में. तो उसमें क्या हुआ कि जो पेपर पहले उन्होंने करके गए, नॉन टारगेट स्टूडेंट्स, जो टारगेट के स्टूडेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने करके गए. टारगेट एकेडमी को मैंने सारा कुछ प्रैक्टिस करा दिया था स्टूडेंट्स को. सो द टारगेट एकेडमी स्टूडेंट्स हैड ऑल द नॉलेज, वेयर द अदर वंस दे सेड कि सर क्वेश्चन पेपर अलग आ गया इस बार, सिलेबस से नहीं आया, थोड़ा अलग पूछ दिया, पहले जैसा नहीं है. So it is not necessary that you will be asked questions on the same lines as previous year's questions. Until unless you complete all the modules perfectly, you will not have a good performance in your examination. So अभी तो ये क्लास में चलो इतना इतना करते हैं. अभी नेक्स्ट क्लास में और भी स्टूडेंट्स को बुला के मैं और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ से. आई ऑल्सो मेक यू सॉल्व दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर वी हैव ए रोलर, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, और चलो ऐसे कैसे एक रोलर है, तो लिस्ट फोर्स निकालने का. सो एक रोलर है, इट इज अगेंस्ट वन ऑफ द सपोर्ट्स ऐसे करके, और यहाँ पे एक ऐसे, तो सेंटर पे एक फोर्स, कभी सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा ये पूछ लेगा, या फिर टेंजेंशियली कितना फोर्स लगेगा ये पूछ लेगा. तो इसमें लोड इतना दिया हुआ है, पॉइंट ए पॉइंट बी. कभी पूछेगा रिएक्शन एट बी कितना होगा, ये समथिंग. सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ. ये आया भी हुआ है आपके आस्तु के पीवाईक्यू में. सो ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस दैट आई हैव डन टुडे, 3 क्वेश्चंस दैट वी हैव डन, ये पीवाईक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन जो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जो कि इसमें 2 स्फीयर्स को लेके है, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है.
So this is something which will be available for you guys, and please come in the next class also for practice. Bring some doubts also. I am here to solve. Do not worry. I'll see you in the next class, guys. Till